morning friends, you are reading the lesson address. The story is reaching towards the turning point. मार्कोनी स्ट्रीट की नंबर 26 46 रेसिडेंस पे लेखिका पुनः वापस हो जाती है। उन्होंने पुनः वहाँ पर पहुँचने का निर्णय किया। She was determined to make this search of her key items. पहला बात तो व्यर्थ चला गया। लेखिका के मन में है The lady Dorley did not talk with her, but in the second term this will not be so. ऐसा नहीं होगा। लेखिका ने बिल्कुल निश्चित कर लिया। Quite determined she was. Forgetting success in their mission, in her mission. But gradually everything became more normal again. Brain was getting to be a lighter color. There was a way you could sleep in unfriend or with a view you were more used to glancing at each day. And one day I noticed I was curious about all the positions that must still be at the address. I wanted to see them, just remember. But gradually everything became more normal again. फिर से gradually माने लगातार धीरे धीरे slowly gradually slowly धीरे धीरे सारी परिस्थितियां सामान्य होती चली गईं। Red was getting to be a lighter color. ब्रेड का रंग बदलने लगा। There was a bed you could sleep in unfriended. क्योंकि वार खत्म हो चुका है। The war has been abolished. Everybody can sleep on their bed without any fear. Unfriended means without any fear. A room with a view you were more used to glancing at each day. A room with a view you were more used to glancing at each day. एक रूम को with a view, उस विचार से you were more used, आप उसे ग्लांस कर सकते हैं। ग्लांस माने टू ग्लिम, टू लुक, ग्लांस। आप अपने कमरे को यूज टू ग्लांसिंग माने देखते रह सकते हैं।
each day, प्रत्येक दिन. And one day I noticed, एक दिन मैंने विचार किया, I was curious about all the positions that must still be at that address. And one day I noticed, एक दिन मैंने विचार किया, I was curious about all the positions, मैं उन सारे साज सज्जा के बारे में उत्सुक थी, that must still be at the address, जो सारी सामाने, जो रूम की सारे पोजीशन की सामाने उसी एड्रेस में पर विद्यमान थी. I wanted to see them, touch, remember. मैं उनको दोबारा स्पर्श करना चाहती थी, उनको देखना चाहती थी. After my first visit in Van to Mr. Dorling's house, I decided to try second time. एक बार डोरलिंग का उनके दरवाजे से लौट आई, लेकिन इस बार वह पुनः दोबारा जाने का निर्णय करती हैं और निश्चित करती हैं कि इस बार मैं अवश्य सफल होंगी तो गेट द इंक्वायरी ऑफ ऑल द फार्मर मैटर्स. नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपनड द डोर टू मी. लेखिका पहुंच चुकी है उनके दरवाजे. अगेन एट दैट प्लेस ऑफ डोरलिंग रेसिडेंस, डोरलिंग के रेसिडेंस पे. और एक 15 साल की लड़की दरवाजे को खोलती है. आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वाज एट होम. मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी माता घर पे है. नो, शी सेड माय मदर डूइंग एन एरंड. मेरी माता घर पे नहीं है. My mother doing an errand. मेरी माता किसी काम से बाहर गई. Errand में you can say leaving. नौकरी पे गई हैं. No matter, I said. कोई बात नहीं है, मैंने कहा. I shall wait for her. मैं बहुत समय तक उनकी प्रतीक्षा कर सकती हूँ. I followed the girl along the passage. मैंने गैलरी से उस लड़की का अनुसरण किया जाते हुए. An old-fashioned iron Anuka, one candle holder hung next to the mirror. An old-fashioned iron Anuka, एक प्रकार का प्रकाश फैलाने वाला आयरन लाइटिंग, the spreading light was fixed, included in the iron frame. एक प्रकार का वो क्या बोलते हैं, उस हनूटी को देखी मैं कि कैंडल होल्डर हंग, कैंडल होल्डर, कैंडल का होल्डर जो है उसको पकड़ने वाला, वो हंग माने लटका हुआ था. नेक्स्ट टू अ मिरर, नेक्स्ट टू अ मिरर, मिरर के सामने, मिरर में शीशा, ग्लास के सामने. We never used to because it was much more cumbersome than a single candlestick. We never used it because हम लोगों ने कभी भी इसका प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि it was much more cumbersome,
या काफी भारी भरकम था। कंबरसम, COMBERSOME, कंबरसम माने हेवी, भारी भरकम। वह काफी भारी भरकम था। Then a single candlestick, एक कैंडल से ज्यादा, could not be sit down, क्या आप बैठोगी नहीं? asked the girl, क्या आप बैठेगी नहीं? लड़की ने कहा। she held upon the door, उसने दरवाजे को पकड़ा। of the living room, जिस घर में वो रहती हैं। and I went inside past her, मैं उसके पीछे पीछे अंदर प्रवेश कर गई। I stopped horrified, मैं भयभीत होकर रुकी। horrified मैं terribly horrified, terribly डर से। मैं डर से वहां रुकी। I was in Rome, I knew and did not know. I was in a room, I knew, मैं उस कमरे में रुकी तो ऐसा लगा कि मैं इस कमरे को जानती भी हूँ and did not know, और नहीं भी जानती हूँ। Good oxymoron here. Literary device, you can make the critical appreciation of the line as literary device oxymoron. ऑक्सीमोरन दिख रहा है, यहाँ पे विरोधाभास दिख रहा है। कोई चीज जानी भी जा रही है और नहीं भी जानी जाती है। साफ मतलब इसका ये है कि कमरा तो अजनबी है, the room is stranger, but what some things and items are possessed there in the room that all are well identified already by the authoress. वे सारी के सारी चीजें लेखिका के द्वारा परिचित हैं, यानी उनके घर की सारी सामानें हैं जो उस कमरे में रखी हुई सारी सामानें हैं, वह उन्हीं के घर की हैं। उनको वो पहचानती हैं, जानती हैं। इसलिए कह रही है कि the room was new by her and unknown by her also. I found myself in the midst of things I did want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere. I found myself in the midst of things. मैं अपने को उन चीजों को के उन वस्तुओं के बीच में पाया। I did want to see again, मैं उनको फिर से देखना चाहती थी, छूना चाहती थी, but which oppressed me, जो मुझे oppressed माने दुखी करना, oppressed to be sad, दुखी होना।
लेकिन वो सारी चीजें लेखा को दुखी भी कर रही थी। In the strange atmosphere, strange means odd. Strange, S-T-R-A-N-G-E. Strange means odd. Odd means विचित्र या अलग। अलग लग रही थी, विचित्र सी लग रही थी। Strange atmosphere, atmosphere माने वातावरण। Surrounding, atmosphere। Atmosphere माने surrounding। Surrounding means वातावरण। उस विचित्र वातावरण में रुकना लेखिका के लिए दुखद प्रतीत हो रहा था। It was being miserable for staying there for some moment to the actress. Or because of the tasteless way everything was arranged. Tasteless. This is the word tasteless. Very cunningful word is used here in pattern of symbolic way. सिंबॉलिक वे में प्रतीकात्मक रूप में टेस्टलेस शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे टेस्टलेस। टेस्टलेस, टेस्ट का अर्थ होता है स्वादिष्ट, जो अच्छा लगे। लेस माने वो किसको कहते हैं, उसका एंटोनिम हो जाएगा कड़वा, bitter. That was tasteless, bitterly arranged to be। यहाँ पे क्या होगा, tasteless जो अच्छा न लगे। What something is not looking good. What something is not looking good. वो चीजें अच्छी नहीं लग रही थी। अनसेफ्ड, बेहद खराब तरीके से रखी हुई थी। टेस्टलेस, एवरीथिंग वाज अरेंज्ड। अरेंज्ड माने व्यवस्थित थी। बेहद खराब तरीके से वो सब सारी चीजें व्यवस्थित थी, मैनेज्ड थी। अरेंज्ड माने मैनेज्ड। अरेंज्ड, मैनेज्ड, अव्यवस्थित। अरेंज्ड माने व्यवस्थित। बेहद बेढंगे से। Unsafely were arranged there, managed there in the room. Because of the ugly furniture or the muggy smell that hung there, I do not know, but I scarcely dare to look around me. Because of the ugly furniture,
जो कमरे में फर्नीचर रखे हुए थे बिल्कुल बेहद पुअर थे, अगली थे। और मग्गी स्मेल दैट हंग देयर, जो लटक रही सामाने थी उसमें मग्गी। MUGGY, muggy. Muggy means bad smell or moist. Bad smell of moist. उमस की महक, उमस की महक। मॉइस्ट भी हो सकता है और इसी को मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। स्मेल दैट हंग देयर, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती थी। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जान पाई। बट आई स्केर्सली, क्यों महक रहा, क्या महक है। बट आई स्केर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, मैं मुश्किल से ही अपने चारों तरफ देखने की कोशिश की। द गर्ल मूव्ड द चेयर, लड़की ने चेयर मूव बने मेरे सामने कर दिया। I sat down and started at the woolen tablecloth. I sat down, मैं चेयर पे बैठ गई and started. I have explained the meaning of start already. Start means to gazing, continuously looking. मैं घूर कर उसे टेबल वूलन क्लॉथ को देखती रही। I rubbed it, मैं उसको रब्ड माने रगड़ना, to polish that. Rubbed, RUBBED, rubbed means to make the friction, घर्षण, उस पे बार बार उंगलियां रगड़ी, ऐसे किसी चीज को घिसना। मैं उसको बार बार रगड़ी, किसी। My finger grew warm from rubbing, और उस वूलन क्लॉथ को रब करने से, घिसने से मेरी उंगलियां वार्म हो गई, हीट हो गई, गर्म हो गई। वार्म मीन्स हीट। हीट माने गर्म होना, और मेरी उंगलियां गर्म हो गई। My fingers grew warm from rubbing. I followed the lines of the pattern. मैं इसी पैटर्न पे, इसी लाइन पे का अनुसरण किया। Somewhere on the edge there should be a burn mark that had never been repaired. Somewhere on the edge, और जो वूलन टेबल क्लॉथ था, एज माने किनारा, EDGE, माने बैंक, किनारा। बैंक मीन्स किनारा। मैंने देखा, सर्च किया कि उस वूलन क्लॉथ
का जो किनारा है वह बर्न मन जला हुआ है, मार्क और बर्न मार्क उस पे है, उसका चिन्ह दिखाई दे रहा है, दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, जिसकी मरम्मत कभी नहीं कराई गई है। माई मदर शायद भी बैक शोन, वह लड़की कहती है लेखिका से कि मेरी माता जल्दी ही वापस लौटेगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उनके लिए पहले से ही चाय तैयार कर रखा है। विल यू हैव अ कप, क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगी? थैंक यू। आई लुक्ड अप, धन्यवाद, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, टी टेबल पे वह लड़की चाय के प्यालों को तैयार कर रखी थी। The cups were already prepared on the table by her. She had a broad back, उसकी जो कमर थी उसकी मम्मी जैसी ही बड़ी चौड़ी थी। Her internal part of body was just wide, just like his mother. Just like her mother, she poured tea from the white pot. Poured, P-O-U-R-E-D, poured होता है, one word is poured, P-O-U-R-E-D, pour means होता है to overflow, F-L-O-W, किसी चीज को उड़ेल देना, उड़ेल देना। उसने कैटली से चाय कप में चाय को उड़ेल दिया। व्हाइट पॉट, सफेद बर्तन से, ऑल इट हैड वाज गोल्डन बॉर्डर ऑन द लीड, ऑल इट हैड वाज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लीड, और उसमें उसका जो बॉर्डर था वो स्वर्णिम था, गोल्ड था, और गोल्ड से लीड किया हुआ था, मैंने मढ़ा हुआ था। आई रिमेम्बर्ड, मैं उसे जानती थी क्योंकि दैट वाज माय हाउस, माय रेजिडेंस, माय रूम्स गुड, वह हमारे घर की सामान थी। शी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, उसने एक बॉक्स को खोला और उससे कुछ चम्मचें उसने निकाली। दैट इज नाइस बॉक्स, बहुत ही सुंदर बॉक्स है। आई हर्ड माई ओन वॉयस, मैंने अपने शब्दों में सुना। इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉयस, यह बहुत विचित्र आवाज थी। आई थॉट इट साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, ऐसा लग रहा था कि each sound, प्रत्येक शब्द was different, माने अलग थे, भिन्न थे। in this room, इस कमरे में। Oh, you know about them, क्या आप इनको जानती हो? She had turned round and brought me my tea, वह मेरे तरफ घूमी and brought me my tea, और मेरे लिए मेरी चाय ले आई। She laughed, वह हंसी। My mother said it is antique, उसने कहा कि मेरी माता ने कहा एंटिक, A-N-T-I-Q-U-E, A-N-T-I-Q-U-E, एंटिक माने ओल्डन। ये सारी चीजें बहुत पुरानी हैं। ये सारी चीजें बहुत पुरानी हैं।
We have got lost more. हम लोगों ने इसे बहुत पहले खो दिया है. She pointed around the room. उन्होंने कमरे के चारों तरफ संकेत किया. See for yourself. आप खुद देखो. I had no need to follow her hand. यद्यपि हमको उसके हाथ को कॉन्फ्रंट करने की जरूरत नहीं थी. I knew which things she meant. मैं जानती थी कि उसके कहने का क्या मतलब है. I just looked at the still light over the tea table. I just looked. ठीक उसी समय मैंने देखा at the still light over the tea table. टी टेबल के ऊपर. As a child, I had always fancied the apple on the pewter plate. pewter माने होता है जस्ता, आयरन. जब मैं बच्ची थी तो उसमें फैंसीड माने कल्पना करती थी. फैंसीड FANCIED फैंसीड माने इमेजिन्ड. कल्पना किया करती थी. तब मैं कल्पना किया करती थी उसमें टेबल उस प्लेट में एप्पल सेव लेकर खाने के लिए. We usually eat for everything, she said. हम लोग उसको हमेशा यूज करते थे. उसने कहा once we even ate of the plates hanging there on the wall. Once we even ate of the plates. एक बार हम लोगों ने इस पे खाया है hanging there on the wall, जो वॉल पे लटका हुआ है. I wanted to so much. इसे मैं बहुत चाहती थी. but it was not anything special. यह कोई बहुत विशेष चीज नहीं थी. so till today I aspire to the lesson with hope of that you shall learn more about the lecture and teaching. Thank you.